Hello guys, in this video we are going to learn about SEO, Search Engine Optimization। ये वीडियो सीरीज आपके जो भी डाउट्स हैं वो पूरे क्लियर कर देगी। सो लेट्स स्टार्ट। First, what is SEO? So SEO is a technique to rank well in search engines. Very in very simple words, एसईओ एक टेक्निक है जिसका यूज हम करते हैं सर्च इंजन्स में अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एसईओ। सो देयर आर 5 types of SEO which in words are called 5 different methods or ways to implement SEO. First is on page SEO. Optimization is done within your website. Second is off page SEO. Third is technical SEO. Fourth is local SEO, and fifth is universal SEO technique. Okay, so now let's understand what are these types of SEO. So first is on page SEO. It is a process of optimizing web page elements like content, title, image, header. So here we need to understand few things. On-page SEO is a process of optimizing individual web pages within the website in order to rank the web page in a better position in SERP. SERP means search engine ranking pages and gain more relevant traffic to the website. On-page refers to optimizing elements like content, title, images, header tags, and many more in each web page. ऑन पेज एसईओ में हम ऑप्टिमाइज करते हैं इंडिविजुअल वेब पेजेस को। वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं, इम्पोर्टेंट पेजेस हैं, उनको ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट की रैंकिंग गूगल में इम्प्रूव हो सके और हमारी वेबसाइट को ज़्यादा रेलिवेंट ट्रैफिक मिले। इन चीज़ों के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो अभी समझते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ ईच वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ऑन पेज SEO. So what is on page and how to implement it? So here we are going to talk about the process of on page optimization and on page optimization को कैसे implement करेंगे किसी भी वेबसाइट के लिए। So first is identify goals, objectives and KPI. Second is keyword research, title tag, meta description, URL structure, header tags, anchor links, image optimization, breadcrumbs, site navigation, and content. So now we are going to talk about individually about these points. So let's start. So first is goals, because our step one is identifying the goals, objectives, and KPIs. So what is goals? So goal is basically defining what you want to achieve from SEO। आपको SEO से अचीव क्या करना चाहते हो? आप ज़्यादा ट्रैफिक चाहते हो, ज़्यादा सेल्स चाहते हो, तो आपका गोल क्या है?
A website can have multiple goals to achieve, like an increase in revenue, sales, traffic, brand awareness. आप जिस वेबसाइट पे काम कर रहे हो उसके एक से ज़्यादा गोल्स हो सकते हैं. When you define the goals, you can define it either at the page level or at the category level or at site level. आपके गोल्स अलग अलग पेजेस के लिए अलग अलग हो सकते हैं. अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग गोल्स हो सकते हैं. डिपेंड करता है कि किस टाइप की कैटेगरी है. और पूरी साइट के भी गोल्स हो सकते हैं कि मुझे इतना ट्रैफिक चाहिए. कैटेगरी लेवल पे हो सकता है कि इस कैटेगरी से मुझे इतना रिवेन्यू चाहिए. और पेज लेवल से, इंडिविजुअल पेज लेवल से अलग अलग गोल्स आपके हो सकते हैं. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव इज ऑल अबाउट quantifying the goals. For example, increase in sales from 50 to 100 in 3 months. So goal is this, that I want to get organic traffic for my website. मुझे अपनी वेबसाइट के लिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए. ऑब्जेक्टिव्स कि अभी मेरे को 50 लोग विजिट कर रहे हैं वेबसाइट पे, तो मुझे 100 चाहिए. दैट इज ऑब्जेक्टिव. For example, if increase in sales in your goal, then defining a number like what is the current sale you are getting through SEO and to what number or percentage you want to increase it. While defining the number, it is also very important to define a particular time frame for it. Example, as we discussed, increase in sales from 50 units to 100 units in 3 month time. तो यहाँ पे आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट कर लिए कि मुझे इतना काम करना है. नेक्स्ट इज KPIs. KPIs for SEO is we have to keep measuring and analyzing increase in traffic and subscribers. Keyword ranking, time spent in website, etc. It is also very important to understand the KPIs. जैसा हम सभी जानते हैं कि SEO एक ऑनगोइंग और टाइम टेकिंग प्रोसेस है. इसलिए जब हम SEO पे काम कर रहे होते हैं, वी नीड टू कीप ट्रैकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ आवर वेबसाइट इन ऑर्गेनिक रिजल्ट्स on a regular periodic interval to make sure we are on the right track. For example, KPI SEO के लिए क्या हो सकती है? We have to keep measuring and analyzing increase in traffic. हमें मेजर करते रहना चाहिए, एनालाइज करते रहना चाहिए कि ट्रैफिक में कितना इंक्रीज हुआ है या सब्सक्राइबर्स में कितना इंक्रीज हुआ है. कीवर्ड की रैंकिंग्स एवरी वीक नॉर्मली आप चेक कर सकते हो. टाइम स्पेंट ऑन द वेबसाइट पे लोग कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं. बाउंस रेट कितना है वेबसाइट का. सबसे ज्यादा ऐसे कौन से पेजेस या पोस्ट हैं जिनको लोग ज्यादा देख रहे हैं. एंड पर पर्सन एक विजिट में कितने पेजेस व्यू करता है. Okay, next step is keyword research. So keyword is a certain search term which user type to find your website in search engines. So I hope अभी goals, objective और and KPIs क्लियर हो चुका है. क्योंकि गोल हो सकता है इंक्रीज सेल्स, एजुकेट यूजर्स. तो इसके लिए अगर आपका गोल सेल्स को इंक्रीज करना है तो आपको चेक करते रहना चाहिए कि ऐसे कौन से पेजेस हैं जहां पे आप ज्यादा कीवर्ड टारगेट कर सकते हो. एजुकेट करना है अगर यूजर्स को, अगर ये गोल है तो फोकस ऑन पोस्ट विद इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स.
ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, अगर आप किसी नई वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो आपका होगा कि ट्रैफिक 3 महीने में 0 से 100 चाहिए, सेल्स 0 से 50 चाहिए। लेकिन आप ओल्ड वेबसाइट को कर रहे हो ऑप्टिमाइज, देन ट्रैफिक 1000 से 3000 चाहिए 3 महीने में, एंड सेल्स 50 से 150 पर मंथ चाहिए। एंड केपीआई ये हो सकता है कि ट्रैफिक चाहिए, ट्रैफिक में कितना इम्प्रूव हुआ है या डिक्रीज हुआ है, पेज व्यूज बढ़े हैं या कम हुए हैं, टाइम स्पेंट ऑन वेबसाइट बढ़ा है कम हुआ है, सब्सक्राइबर्स ऑर्गेनिक सर्च से कितने आए हैं और रैंकिंग में क्या डिफरेंस हुआ है। नाउ इज कीवर्ड रिसर्च। So keyword is a certain search term which a user types to find your website in the search engine is called keyword. तो कीवर्ड सिंगल वर्ड भी हो सकता है एंड फ्रेज भी हो सकता है, बट कीवर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एसईओ। सो कीवर्ड्स कैन बी डिफाइंड इन टू कॉन्टेक्स्ट। पहला है कि आप लेंथ के हिसाब से, एंड दूसरा है यूजर की इंटेंशंस के हिसाब से आप कीवर्ड्स को डिफाइन कर सकते हो। सो फर्स्ट इज बेस्ड ऑन लेंथ। There are three types of keywords based on length: short tail, medium tail, long tail. इनके नाम से ही पता लग रहा है। शॉर्ट टेल का मीन्स जो आपका छोटा कीवर्ड है, जैसे पैकर्स, आपने सिर्फ ये ही लिया, या पैकर्स मूवर्स, सिर्फ यही कीवर्ड लिया तो ये शॉर्ट टेल हो गया। मीडियम टेल, पैकर्स मूवर्स सर्विसेज। लॉन्ग टेल, बेस्ट पैकर्स एंड मूवर सर्विसेज इन दिल्ली, it is long tail keyword. Next is based on users intent. First is transactional keywords, second is informational keywords, and third is branded keywords. So branded keywords means किसी बिजनेस का ही नाम आएगा, but what is transactional keywords and what is informational keywords? So basically keyword research helps to identify keywords that appeal to users and also expand the reach of website. Okay, first we are going to learn about transactional keywords. First is, so ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स, जैसे कि नाम से ही पता लगता है, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स जो होते हैं यानी कि जिनसे आपको बिजनेस आने की उम्मीद रहती है। एंड सेकंड इज इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जहां से आपको अपने ब्रांड के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोगों को देनी है। तो फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शनल, जैसे कि आपकी कोई वेबसाइट है अमेजन.com की तरह, तो अमेजन के लिए कौन से कीवर्ड चाहिए? अमेजन पे कोई पोस्ट नहीं लिखी होती है, वहां पे सीधे प्रोडक्ट ही मिलेंगे आपको और उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। इसके अलावा वहां पे कोई पोस्ट नहीं लिखी होती, तो वहां पे आप कौन से कीवर्ड सेलेक्ट करोगे? वहां पे करोगे ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल वहां पे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड क्या कर सकते हो, जैसे कोई प्रेस है तो आप कीवर्ड सर्च कर सकते हो हाउ टू बाय प्रेस, बट इसकी इंफॉर्मेशन तो मिलेगी नहीं आपको अमेजन पे, ये तो किसी ब्लॉग की वेबसाइट पे मिलेगा। और किसी ब्लॉग की वेबसाइट पे है हाउ टू बाय प्रेस, देन उसके लिए आप इस तरह का कीवर्ड नहीं दोगे कि बाय प्रेस ऑनलाइन करके, वहां पे कुछ इंफॉर्मेशनल सा कीवर्ड दोगे जो कि सूटेड करेगा। सो हियर आर फ्यू टूल्स टू हेल्प यू रिसर्च अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स फॉर योर वेबसाइट। अगर आपको अपनी वेबसाइट के लिए अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स फाइंड करने हैं तो यहाँ पे कुछ टूल्स हैं। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए आप यूज कर सकते हो गूगल सजेस्ट, गूगल रिलेटेड,
Google Keyword Planner, Google Trends, and our Suggest. So these are the 5 best tools to search keywords, transactional keywords. इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। जैसा मैंने आपको बताया कि लोगों को इन्फॉर्म करना है किसी प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में या किसी इवेंट के बारे में, तो फर्स्ट इज क्यूरा, सेकंड इज आंसर द पब्लिक, थर्ड इज पीपल आल्सो आस्क गूगल, एंड अवर सजेस्ट। तो अवर सजेस्ट का यूज आप इंफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल दोनों कीवर्ड्स के लिए कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने एसईओ के बारे में जाना, एसईओ की मेन इंपॉर्टेंस क्यों है एज कंपेयर टू अदर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, उनके बारे में जाना, एसईओ के टाइप्स के बारे में जाना, एंड टाइप्स के बाद हमने कीवर्ड्स के बारे में जाना कि किस टाइप के कीवर्ड्स होते हैं एंड हाउ वी कैन सिलेक्ट appropriate keywords for our project. So stay tuned in this series and you will know more about SEO in very easy way. So see you. Thank you.